Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum. This is second half of our week number 9 lecture of the course Mobile Ad Hoc Network. In the first half of this lecture, I talked about some issues that we need to address, we need to consider while designing any transport layer protocol, any transport layer algorithm, any transport layer solution for mobile ad hoc network. Some of the issues about which I talked in the first half were induced traffic and induced throughput. I also talked about separation of congestion control, reliability and flow control mechanism. Then I talked about the power and bandwidth constraints, misinterpretation of congestion, completely decoupling of the transport layer, dynamic topology, asymmetric link behavior, multipath routing, network partition and remerging, and finally some issues related with the wireless communication, for example signal attenuation, Doppler shift or Doppler effect, multipath fading. Well, in this second half my focus is going to be on the design goals, and then in the second half of this second part I will be talking about the classification or categorization of the existing protocol for the transport layer of mobile ad hoc network. Okay, while you are designing a protocol for the mobile ad hoc network, you have to keep in mind several goals, right? And your objective is going to be achieved these goals as much as possible. यानी जब भी आप कोई भी ट्रांसपोर्ट लेयर सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, आपने अपने जहन में कुछ गोल्स को जो है वो रखना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने आपने रखने हैं और आपकी कोशिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को या ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव कर पाएँ. So some of the goals are mentioned here. For example, the first goal is कि जो भी प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन करेंगे it must maximize the throughput per connection. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, throughput and per connection. Throughput. In simple word, throughput is actually the amount of product, or you can say a service, that a company can produce and deliver to their clients within a specific amount of time or period of time. So इसको हम throughput कहते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ, और वो कोई प्रोडक्ट्स या कोई सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रही है. सो थ्रूपुट को आप मेजर कर सकते हैं कि हाउ मच प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज the company or the organization has delivered to the client within a specific amount of time. In general term आप कह सकते हैं कि it is actually the rate of production or the rate at which anything or something is processed. Actually जो throughput है, it is a term जो कि हम use करते हैं sometime to describe the rate at which somebody is producing or processing something, mostly their products or their services. So throughput को हम रेट भी कंसिडर कर सकते हैं जिससे कोई कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बना रही है या कोई सर्विसेज ऑफर कर रही है. There is the definition of throughput in a general context. लेकिन यहाँ पे जो थ्रूपुट जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is in the context of computer networks. So here we have a different view of the throughput, the term throughput.
हम थ्रूपुट किसे कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में? एक्चुअली थ्रूपुट इज़ द रेट ऑफ सक्सेसफुल मैसेज डिलीवरी ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। चैनल आपके पास, मीडियम जो आपके पास है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, but it's actually the rate of successful message delivery over that channel or medium। और नॉर्मली हम थ्रूपुट को मेजर करते हैं इन बिट्स पर सेकंड में, जिसको आप BPSP कह सकते हैं। ओके, तो in the context of communication networks, throughput actually tells you कि how much data was transferred from a node which is a source node to another node which is a destination node at any given time। ठीक है, let me repeat, in the context of communication network, throughput is actually the rate of successful message delivery over a medium or over a communication channel, जो आपके पास वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। थ्रूपुट को नॉर्मली हम मेजर करते हैं इन बिट्स पर सेकंड में और BPS। और थ्रूपुट आपको एक्चुअली बताता है कि हाउ मच डेटा वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड एट एनी गिवन टाइम। ओके, सो आपके डिज़ाइन गोल में सबसे पहली चीज़ वो ये होनी चाहिए कि आप इस थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, यानी बिट्स पर सेकंड को आप मैक्सिमाइज़ कर सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को आप कम टाइम में सेंड कर सकें या प्रोसेस कर सकें। So this must be the beauty of your protocol that you are designing for the transport layer of mobile ad hoc network। सेकेंड जो चीज़ है इस गोल में, दैट इज़ पर कनेक्शन थ्रूपुट। एक है ओवरऑल थ्रूपुट, एक है पर कनेक्शन। मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में नॉर्मली हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो आपको पता है कि देयर इज़ मल्टी हॉप कम्युनिकेशन। और आपने डिज़ाइन चैलेंजेस में देखा कि वी आर डीलिंग विद एसिमेट्रिक लिंक्स, कि सारे लिंक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक जैसी नहीं है। So you will be focusing on maximizing the throughput of the overall network as well as per connection throughput enhancement. That is going to be your goal. Second design goal is that it should also provide fairness across the multiple flows in the network। और फेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सम टाइम वी यूज़ द टर्मिनोलॉजी क्वालिटी ऑफ सर्विस, सम टाइम वी यूज़ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। ठीक है, एंड फ्रॉम फेयरनेस वी मीन के सारे नोड्स को या सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को, लिंक्स को, वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली, राइट। सो नॉर्मली हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पे हम प्रायोरिटीज़ यूज़ करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस मींस कि आप डिफरेंट डेटा को या डिफरेंट मैसेजेस को या डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट प्रायोरिटीज़ दे दें, एंड देन ऑन द बेस्ड ऑफ दिस प्रायोरिटीज़ यू एक्चुअली प्रोसेस द डेटा ऑफ दोज नोड्स, राइट। लेकिन आपका डिज़ाइन गोल इस तरह का होना चाहिए कि ये थ्रूपुट को फेयरली जो है वो हैंडल करे अक्रॉस मल्टीपल फ्लोज। सो दिस शुड बी योर सेकंड डिज़ाइन गोल। थर्ड डिज़ाइन गोल शुड बी कि जो भी आपका प्रोटोकॉल है या एल्गोरिथम है या जो भी सोल्यूशन है, वाट एवर इट इज़, इट शुड इंकर मिनिमम कनेक्शन सेटअप एज वेल एज मेंटेनेंस ओवरहेड। ये दोनों चीज़ें मिनिमम अमाउंट की होनी चाहिए। On the other hand, your protocol should minimize the resource requirements for setting up and maintaining the connection in order to make the protocol scalable in large network। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में और कनेक्शन को मेंटेन रखने में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा,
या इन दोनों चीज़ों में जो ओवरहेड होता है, आपका प्रोटोकॉल उस ओवरहेड को कम से कम रखे. इट शुड बी योर डिज़ाइन गोल. ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. व्हीकुलर एडहॉक नेटवर्क का आपको पता होगा, जिसको हम वानेट भी कहते हैं. दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोबाइल एडहॉक नेटवर्क इन विच व्हीकल्स एक्ट एज मूविंग नोड्स. अच्छा, अब कंसिडर करें कि आपके पास 2 स्मार्ट व्हीकल्स हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. फॉर एग्जांपल 180 किलोमीटर पर आवर. बहुत ज़्यादा है, चलो कम कर ले, 120 किलोमीटर. एंड दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जांपल वन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and the other is traveling from south to north, or you can say the one is traveling from on the motorway from Islamabad to Peshawar and the second one from Peshawar to Islamabad. So they are actually traveling in opposite direction and they have a message to send. यानी वो opposite direction में at a high speed travel भी कर रहे हैं and then what they want to communicate. अब आपके पास 2 options हैं. The first option is कि before sending a message from one vehicle to another vehicle, first they would need to establish a connection. और उस connection को establish करने में they have to send each other some control messages. Hey, I want to send a message to you. Are you ready? फिर दूसरी जो गाड़ी है वो उसको रिस्पॉन्स करेगी, येस आई एम रेडी बट यू हैव टू यूज़ दिस चैनल एंड दिस मच स्पीड ब्ला ब्ला ब्ला. And then the first vehicle send another message, okay, be ready, I'm going to transfer you the message. And then after that the vehicle actually start transmitting the message. So you see, before sending the message we actually establish a connection between two vehicles. अब प्रॉब्लम क्या है कि दे आर ट्रैवलिंग एट अ हाई स्पीड and also in opposite direction. So the inter-contact time between these two vehicles is a very less. You can actually calculate them कि कितना टाइम है उन दोनों के दरमियान. और चूंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, so the transmission range is very less. मैक्सिमम जो रेंज आपको मिल सकता है, लेट्स सपोज वो 1000 मीटर्स हैं, बट दैट इज़ अ थ्योरेटिकल. जो आपको मिल सकता है वो दैट इज़ लाइक 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर्स. ठीक है. तो इस कम अ फ्यू सेकेंड्स टाइम में जो कि इन दोनों के दरमियान है, वो तो ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में लगा लेंगे. अब डेटा वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो द फर्स्ट अप्रोच इज़ नॉट feasible in this scenario. Now let us see the second option that they have available. Same vehicles, same speed, opposite direction. They want to exchange messages with one another, but this time without establishing a connection. जैसे ही वो एक दूसरे के रेंज में आते हैं, they just push down the messages and the other vehicle receive the message. So in this scenario we are actually not utilizing our time in the connection establishment. We just send our messages without connection establishment. ठीक है. तो इस केस में हमारा जो ओवरहेड है वो कम है. जो हमारे पास दोनों के दरमियान इंटरकनेक्शन टाइम है फॉर द मैसेज ट्रांसमिशन, वो पहले ऑप्शन के मुकाबले में ज़्यादा है. राइट. सो यू हैव टू कीप दिस गोल इन माइंड. अगर आपका सिनारियो, आपका नेटवर्क इस टाइप का है, जस्ट लाइक जो मिसाल मैंने आपको अभी दी, तो उस केस में जो कनेक्शन टाइम है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, उसको या तो आप जो है वो एलिमिनेट करेंगे उस स्टेप को, या आप उस ओवरहेड को एज मिनिमम एज पॉसिबल जो है वो रखेंगे. और अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, देन द सेकंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू मेंटेन दैट कनेक्शन एज वेल, एंड दैट इज़ एन एक्स्ट्रा ओवरहेड. ठीक है. सो इन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो अपने सामने रखना है while you are designing a solution for the transport layer of mobile ad hoc network. नेक्स्ट डिज़ाइन गोल इज़ के जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, इसमें मैकेनिज़्म होने चाहिए फॉर कंजेशन कंट्रोल
एंड फ्लो कंट्रोल इन द नेटवर्क। यू सी, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उन सर्विसेज में से दो सर्विसेज ये हैं कि कंजेशन को कंट्रोल किया जाए इन द नेटवर्क एंड आल्सो फ्लो को कंट्रोल किया जाए, ताकि सेंडर इतना ज़्यादा डेटा रिसीवर को ना सेंड करे कि उससे रिसीवर जो है वो ओवरवीम हो जाए, विल्म्ड हो जाए और उसकी मेमोरी में स्पेस ना हो, और उसके नतीजे में जो है वो आपके इनकमिंग पैकेट लॉस कर जाए। उसका एंड इफेक्ट जो है वो नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, क्योंकि जो सेंडर है उसको वो मैसेजेस, वो पैकेट्स रीसेंड करने होंगे, रिट्रांसमिट करने होंगे। सो आपके प्रोटोकॉल में ये बेसिक मैकेनिज्म फॉर कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल होने चाहिए। यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि डिज़ाइन चैलेंजेस में मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू सेपरेट कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल और रिलायबिलिटी सर्विसेज। उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग अदर लेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंजेशन और फ्लो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर रहे हैं, जबकि रिलायबिलिटी और एरर कंट्रोल वो आप बिलो लेयर से वो काम ले सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन गोल के जो आपका सोल्यूशन है, इट मस्ट प्रोवाइड रिलायबल एंड अनरिलायबल कनेक्शंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड हमें पता है कि अबव द ट्रांसपोर्ट लेयर वी हैव एप्लीकेशन लेयर, right? So it is actually the application layer which send the data. Actually it is the user, लेकिन user जो है वो applications या को यूज़ करते हैं और applications application layer को यूज़ करती है। So actually we are facilitating the application layer कि वो transport layer की services को यूज़ करते हुए अपने data को send कर सके। अब इस transport layer पे दो तरह की services available होती हैं to the applications। एक को हम कहते हैं रिलायबल, एक को हम कहते हैं अनरिलायबल। जिस तरह हम कहते हैं कि टीसीपी हमारे पास रिलायबल है और यूडीपी अनरिलायबल है, राइट? सो इन द सेम वे जो आपका सोल्यूशन है वो या तो रिलायबल होगा या अनरिलायबल होगा, जो भी प्रोटोकॉल आप डिज़ाइन करते हैं, राइट? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन लेयर और द यूज़र नीड्स कि उसको रिलायबल सर्विसेज चाहिए या अनरिलायबल। Or in some cases you would be interested in providing quality of service mechanism for the user। आपको priority based services भी चाहिए, ठीक है? So अगर उस तरह की application है then you have to provide quality of service as well to the end user, right? In other environments you can only do best effort delivery as we saw in the first half of this lecture. Okay, so this is another design goal कि आपने डिसाइड करना होगा कि आप रिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं या अनरिलायबल सर्विसेज। ओके, another design goal that is very common and very obvious and all of us know about it कि जो मोबाइल नेटवर्क नेटवर्क है they are actually dynamic। उनकी टोपोलॉजी रैपिडली चेंज होती है due to the movement। So जो आपका प्रोटोकॉल है it must be able to adapt itself to the dynamic environment of such type of networks। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ कि आपके प्रोटोकॉल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर नेटवर्क में पार्टीशन आती है या रीमर्जिंग आती है, so it must be able to handle such situations। That is going to be the property of your solution, of your protocol that you are designing, right? कि ये changes जो टोपोलॉजी में आ रही हैं वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करें। वेल, नेक्स्ट डिज़ाइन गोल और वो है कि अगर आपके पास इस तरह के नेटवर्क्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट बैंडविड्थ पे भी हो सकते हैं और वो एनर्जी पे भी हो सकते हैं, बैटरी पावर्ड नोड्स अगर हैं तो उस केस में आपका जेन्युइन गोल ये होना चाहिए कि किस तरह आप इस लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका प्रोटोकॉल किस तरह
बैटरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा, किस तरह बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा। लेट सपोज आपका जो प्रोटोकॉल है वो डेटा के अलावा कंट्रोल मैसेजेस को भी जो है वो सेंड एंड रिसीव कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ द मैसेज एंड द साइज ऑफ द मैसेज इट मस्ट बी लेस, ताकि जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है वो कम से कम हो। सो इन सच सिनारियो you have to minimize the usage of the battery and the bandwidth and other critical resources in the network. सो आपका जो प्रोटोकॉल है नेक्स्ट गोल वो इसी तरह का है, इट मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज कांस्टेंट, ठीक है, लाइक बैटरी हो गया, लाइक बफर साइज, लाइक बैंडविड्थ एंड अदर थिंग्स। और ना सिर्फ ये कि ये अवेयर हो बल्कि ये उसको एफिशिएंटली यूज़ भी कर सके। Coming to the next goal of the transport layer protocol for mobile ad hoc network, it actually have to make use of information from the lower layers in the protocol stack for improving the network throughput. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रॉस लेयर डिज़ाइन की। जिस तरह डिज़ाइन चैलेंजेस में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमॉन्ग डिफरेंट लेयर्स, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफरेंट लेयर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू आर actually designing a cross layer solution. So that is going to be the beauty of your protocol if it has this mechanism कि ये क्या करे, इंफॉर्मेशन को शेयर भी करे और इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करे from the other layers that lies below the transport layer. अगर ये कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन एमोंग डिफरेंट लेयर्स होगी तो ऑब्वियसली जो आपके नेटवर्क का थ्रूपुट है वो भी इंक्रीज़ होगा, इम्प्रूव होगा। सो क्रॉस लेयर डिज़ाइन फ्रेमवर्क को आप लोगों ने जो है वो डिज़ाइन गोल में सामने रखना है। ओके, गोल, लास्ट गोल जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट, सो आप इसको स्किप कर सकते हैं। द प्रोटोकॉल शुड मेंटेन बट आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू से हियर। ओके, सो जे तक काफ़ी है। ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट section for today lecture, and it is actually about the solutions that we have available for the mobile ad hoc network transport layer. हम डिफरेंट तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। So transport layer solutions for the mobile ad hoc network. Broadly speaking, we can divide the solutions that we have available for the transport layer into two categories. The first one is TCP over MANET, and the second one is other transport layer protocol, या नॉन TCP भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं TCP ओवर मानेट की। अगेन इस कैटेगरी को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट सब कैटेगरी इज कॉल्ड स्प्लिट अप्रोच एंड द सेकंड इज कॉल्ड एंड टू एंड अप्रोच। स्प्लिट अप्रोच में जो हमारे पास वेल नोन प्रोटोकॉल है फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट इज कॉल्ड स्प्लिट TCP, जबकि एंड टू एंड अप्रोच में जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर लाइक TCP ELFN, TCP-F, TCP bus एंड ATCP। वेल, थोड़ा सा इस डायग्राम को देख के बताएं और थोड़ा सा सोच के बताएं कि व्हाट इज़ कॉमन इन द TCP ओवर मानेट सब कैटेगरीज। यानी TCP ओवर मानेट को हम फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। द फर्स्ट इज द स्प्लिट अप्रोच, द सेकंड वन इज द एंड टू एंड अप्रोच। व्हाट इज कॉमन इन बोथ दीज सब कैटेगरीज ऑफ TCP ओवर मानेट? जी सोच के बताएं, व्हाट इज द कॉमन थिंग्स बिटवीन दीज टू सब कैटेगरीज? ओके, you are right, yes, that is the TCP is common.
यानी इन दोनों सब कैटेगरीज के जो प्रोटोकॉल हैं दे आर एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम द टीसीपी, और आप कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली up to some extent they are actually the modification of the existing TCP protocol. इंस्पिरेशन है TCP की या enhancement है, amendment है of the TCP protocol, right? On the other side जो second category है that is other transport layer protocol, उसके जो दो protocols हैं ACTP and ATP. So आज के remaining lecture में we will be talking about our first protocol and that is split TCP. And in the coming a week, in the next lecture, inshallah, we will be talking about some other transport layer protocols, जो existing protocol है. Okay. So सबसे पहले हम देखते हैं कि जो TCP over MANET की category है, what does it mean? या what are its characteristics? So जो आपको पता है कि जो TCP protocol है, actually it is the most dominant transport layer protocol in today's internet. कहा जाता है कि जो 90% ट्रैफिक है they actually uses the TCP protocol. So आप कह सकते हैं कि that is a predominant transport layer protocol which is used by 90% of the computers throughout the world. हो सकता है ये फिगर ये नंबर अब चेंज हो चुका हो क्योंकि we still have new protocols emerging for the transport layer, but that is like the father of all the protocols at the transport layer. Okay, so why it is so dominant? Why it is dominating the other protocols? Why it is leading its competitor? Because of its reliability, end-to-end congestion control, byte stream transport mechanism, and above all these, it's more elegant and simple protocol that is actually leads to the success of the internet. And on the other side, it is an influencing protocol जिससे बाकी बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो इससे इंस्पायर्ड होके बनाए गए हैं. ठीक है. सो टीसीपी की अपनी खसूसियात हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंजेशन इन द नेटवर्क, फॉर फ्लो कंट्रोल, फॉर एरर कंट्रोल मैकेनिज़्म, फॉर बाइट स्ट्रीम ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह जो इसकी खसूसियात हैं. लेकिन बिसाइड फ्रॉम दैट इसका जो डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी एलिजेंट एंड वेरी सिंपल, राइट. सो इट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सक्सेस इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. और यही रीज़न है कि इसको बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो इससे इंस्पायर्ड हो के डिज़ाइन किए गए हैं. ओके. It's the adaptability of the TCP to the congestion in the network has been an important feature. बहुत सारे फीचर्स हैं TCP के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फीचर है दैट इज़ कंजेशन इन द नेटवर्क. और लास्ट लेक्चर में कंजेशन को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से वर्जन्स या फ्लेवर्स टीसीपी के अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल रीनो पे हमने बात की थी, टाओ पे हमने बात की थी, एक्सेट्रा. सो इससे पता चलता है कि कंजेशन को कंट्रोल करने में टीसीपी का एक अहम रोल है. सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि इट्स adaptability to the congestion in the network has an important feature. Okay. Well, the question is कि अगर हमारे पास TCP को इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, TCP की इतनी ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कंजेशन से रिलेटेड, फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड, एरर कंट्रोल से रिलेटेड, इन ऑर्डर डिलीवरी से रिलेटेड, राइट. So why not to use TCP directly in the mobile ad hoc network as well? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा at the beginning of this lecture when we were talking about the design
challenges of the mobile ad hoc network protocol at the transport layer, वहाँ पे हमने बात की थी कि आप हम TCP को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, राइट. सो इवन तो के जो फीचर्स हैं TCP के, दे आर वेरी अट्रैक्टिव. TCP is a very successful protocol, but still it is not applicable to the mobile ad hoc network. So इसकी जो adaptability है, that is not straightforward. Although it's a traditional protocol जो कि specifically डिज़ाइन किया गया था for the wide network, right? and बाद में बाकी प्रोटोकॉल जो हैं वो इस पे बेस करके बनाए गए हैं. Since TCP is widely used in today's world, so its efficient integration of MANET with the internet is paramount wherever possible. यानी हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल नोवल प्रोटोकॉल डिज़ाइन करने की बजाय हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली इस अप्रोच में हम कोशिश करते हैं कि हम TCP को इनेबल कर सके ताकि उसको हम इंटीग्रेट कर सके विद आवर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, ताकि हम जो है TCP के जो फ़ायदे हैं उसको हम हासिल कर सकें व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, बात सिनारियोज हमारे पास इस तरह की होंगी जहाँ पे मोबाइल एड हॉक नेटवर्क को वी विल बी नीडिंग टू कनेक्ट देम टू द इंटरनेट. सो वहाँ पे जब इंटरनेट की हम बात करते हैं, सो ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग TCP प्रोटोकॉल at the backbone in the internet, right? So there must be integration, an efficient integration between the TCP and the mobile ad hoc network. Okay, so that is the main focus of this category of protocol कि TCP को integrate किया जा सके with the mobile ad hoc network. And why they are focusing this, because they want to achieve the best feature of the TCP. अगर आप TCP वेरिएंट को यूज़ करेंगे फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, यू विल गेट एडवांटेजेस. फॉर एग्जांपल आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना बैंडविड्थ आपके पास अवेलेबल है, रूट फेलियर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस चैनल में अगर कोई एरर है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, रीट्रांसमिशन आप कर सकते हैं, बफर कैपेबिलिटीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि TCP में जो रिसीवर है वो सेंडर को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बफर, राइट. तो अकॉर्डिंगली जो सेंडर है वो अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करता है. सो ऑल दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट द TCP. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू propose a solution that is actually a TCP variant, it will have all these qualities mentioned here. Okay, लेकिन just remember कि कोई भी solution सारे best qualities को achieve नहीं कर सकता. यानी जो भी solutions हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ deficiencies होंगी. सारे प्रॉपर्टीज़ को, सारे फीचर्स को जो वेरिएंट ऑफ द TCP है वो अचीव नहीं कर सकते. कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग्स होंगी. ठीक है, सो जो इस कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप देखें इन द फिगर, उसको मज़ीद 2 सब कैटेगरीज में फिर डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट अप्रोच एंड एंड टू एंड अप्रोच. सो लेट अस सी स्प्लिट अप्रोच एंड देन द प्रोटोकॉल ऑफ दिस कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड स्प्लिट TCP, उस पर हम बात करते हैं. Okay, so split approach. What is split approach? The fairness and throughput of TCP suffer when it is used in MANET. Design challenges में इस पे हमने बात की थी कि fairness और throughput TCP की जो है available in the wired network, it will suffer if you apply them to the MANET. And one of the reason for this is the length of the path. चूँकि हम मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में मल्टी हॉप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं in order to send a message in most of the cases, तो जो आपका लेंथ है पाथ की, that is increased in MANET. तो अगर पाथ इंक्रीज हो जाए, it mean कि जो थ्रूपुट है, it will the degradation in the throughput will also increase. Okay, जो आपके पास शॉर्ट कनेक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ. अगेन it actually enjoys the advantage over long connection, which means कि जो short connections है they generally obtain a high
throughput as compared to the longer connection. So that is very obvious and very simple rule. Connection is short, throughput is high. Connection is long, throughput will degrade, will minimize. Okay. So इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड द स्प्लिट अप्रोच. ठीक है. सो नॉर्मली टीसीपी सेशंस में अनफेयरनेस होगी, यानी शॉर्ट कनेक्शन है और दूसरे साइड पे आपके पास लॉन्ग कनेक्शंस हैं. शॉर्ट कनेक्शन में थ्रूपुट ज़्यादा, लॉन्ग में थ्रूपुट कम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अनफेयरनेस. एक लिंक की जो थ्रूपुट कैपेसिटी है वो कम है, दूसरी की ज़्यादा है. ऑब्वियसली इट इज़ अनफेयरनेस. सो इन अनफेयरनेस की वजह से एक सेशन ऑफ द टीसीपी will obtain higher throughput while the other session will get low throughput. So it is unfairness. इस unfairness problem को at the TCP layer इसको जो है वो further worse situation पे लेके जाता है आपका make layer. make layer पे चीज़ें the things get worse, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटोकॉल मेक प्रोटोकॉल के जो मैकेनिज्म है जिसपे हमने पार्ट फर्स्ट पे बात की थी, उसकी वजह से ये अनफेयरनेस मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दिस कैटेगरी हैज़ बीन डेवलप्ड, और इसका जो प्रोटोकॉल है द मोस्ट पॉपुलर वन दैट इज़ कॉल्ड द स्प्लिट टीसीपी प्रोटोकॉल. व्हाट डज इट डू? Actually, the split TCP protocol will provide you a unique solution to this problem that we have addressed. किस तरह? The scheme, जिस तरह नाम से जाहिर है, the scheme will split the transport layer objectives into congestion control and reliable packet delivery. Remember, हमने इस पे बात की थी कि we need to divide the services provided by the transport layer in between the different layers. यानी सब कुछ टीसीपी आपके लिए कर रहा है? नो, यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आपने कुछ काम और लेयर से भी लेना है. तो टीसीपी के हवाले हम क्या कर रहे हैं? कंजेशन कंट्रोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिलायबल पैकेट डिलीवरी. ठीक है. अब देखें, कंजेशन कंट्रोल इज समथिंग एल्स वाइल द रिलायबिलिटी इज समथिंग एल्स. कंजेशन कंट्रोल इज अ लोकल फिनोमिना. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, कंजेशन कंट्रोल इज एक्चुअली अ लोकल फिनोमिना. ठीक है. यानी हर एक नोड पे, हर एक लिंक पे कंजेशन डिफरेंट हो सकती है. वाइल द एंड टू एंड रिलायबिलिटी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल नेटवर्क. वहाँ पे सिर्फ सोर्स डेस्टिनेशन इन्वॉल्व है. यहाँ पे आपके पास कंजेशन कंट्रोल में इंटरमीडिएट डिवाइसेस या लिंक्स या नोड्स, दे आर इन्वॉल्व्ड, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द होल नेटवर्क थ्रूपुट. सो इन मानेट एनवायरनमेंट आपके पास इस कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज़्म की वजह से क्या होगा कि एक्चुअली स्प्लिट टीसीपी प्रोटोकॉल में हम कंजेशन कंट्रोल को किस तरह हैंडल करते हैं, दैट इज़ कि हम नेटवर्क को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं और उनको हम लोकल रीजन्स कहते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम तो हम ये करते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड करते हैं, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट जोन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं. सो द स्प्लिट टीसीपी स्कीम यूजेस अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स, और जो नोड्स ये सेलेक्ट करता है उनको हम कहते हैं प्रॉक्सी नोड्स. सो प्रॉक्सी नोड्स का अहम रोल होता है. सो लेट मी रिवाइज द स्प्लिट टीसीपी मैकेनिज्म. दो चीज़ें हैं हमारे पास. द फर्स्ट थिंग इज़ कंजेशन, द सेकंड थिंग इज़ रिलायबिलिटी. कंजेशन कंट्रोल लोकल फिनोमिना है, सो हमने इसको लोकली एड्रेस करना होगा इन द स्प्लिट टीसीपी. while reliability is something which is related with the end to end acknowledgement, तो उसको हमने जो है वो end to end level पे मैनेज करना होगा. राइट. सो इसके अलावा
कि हम जो है नेट ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड करते हैं कि कंजेशन कंट्रोल जो है वो लोकल फिनोमिना है, और ये कंजेशन अकर होती है लोकली बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंशन एमॉन्ग द नोड्स, के हर एक नोड चाहता है कि वो चैनल को एक्सेस करे और डेटा को सेंड करे, और इसकी वजह से हाई ट्रैफिक भी जनरेट होता है इन द लोकल रीजन्स। सो वी नीड लोकल सॉल्यूशंस कंजेशन को हैंडल करने के लिए। जबकि एट द सेम टाइम रिलायबिलिटी इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द एंड नोड्स, तो वहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन हमें चाहिए, और दैट इज़ द एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट। तो इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ को सेपरेट करने के अलावा स्प्लिट जो TCP है, it actually do another thing, and that is कि it will split the long TCP connections into shorter segments। यानी ये क्या करेगा, जोन्स क्रिएट करेगा, और इस जोन को क्रिएट करने का पर्पस ये है कि परफॉर्मेंस को और फेयरनेस को इंक्रीज किया जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्प्लिट TCP क्या करता है, हर एक जोन से इंटरमीडिएट नोड्स को सेलेक्ट करता है, और नोड्स को हम कहते हैं प्रॉक्सी नोड्स। अब स्प्लिट TCP स्कीम क्या करेगा, अगर कोई पैकेट है और उस पैकेट को हमने ट्रांसमिट करना है, तो जो प्रॉक्सी नोड है जिसको हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम अ जोन, जैसे ही इसको ये TCP पैकेट रिसीव होता है, वो इस पैकेट को इंस्पेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसके कंटेंट्स को रीड करता है, और रीड करने के बाद इस पैकेट को बफर करता है इनटू इट्स लोकल बफर मेमोरी, और बफर करने के बाद इट विल सेंड ऑन एन एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स। अब ये सोर्स जो है, ये जो सेंडर है, ये आपके पास ये जो सोर्स है, ये सेंडर भी हो सकता है, और ये कोई दूसरा प्रीवियस प्रॉक्सी नोड भी हो सकता है, राइट। लेट मी रिपीट द कॉन्सेप्ट कि इस स्कीम में जो पैकेट जो आप ट्रांसमिट करते हैं, जैसे ही वो पैकेट प्रॉक्सी नोड को रिसीव होता है, वो TCP पैकेट, तो प्रॉक्सी नोड क्या करेगा, उस पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसके कंटेंट्स को रीड करेगा, और फिर उसको बफर करेगा इन द लोकल मेमोरी, और एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा टू द सोर्स। और सोर्स आपके पास सेंडर भी हो सकता है और कोई और प्रॉक्सी नोड भी हो सकता है। इस एक्नॉलेजमेंट को, जो कि हम लोकल रीजन्स में यूज़ कर रहे हैं, इसको कहते हैं लोकल एक्नॉलेजमेंट और लेक इन शॉर्ट। इस केस में जो आपके प्रॉक्सी नोड्स हैं, दे एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं तो वो उसको बताते हैं कि ओके, डू नॉट वरी, वी गेट योर TCP पैकेट एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द पैकेट फर्दर। तो इस पैकेट को फर्दर वो डेस्टिनेशन की तरफ, इफ़ इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड, भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इट कैन बी डिलीवर टू अनदर प्रॉक्सी नोड फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ओके, अब ऑन द अदर साइड, जैसे ही सेंडर को या प्रीवियस प्रॉक्सी नोड को एक्नॉलेजमेंट, लोकल एक्नॉलेजमेंट लेक मिल जाती है, तो वो प्रॉक्सी क्या कर देता है, वो प्रॉक्सी जो है प्रीवियस प्रॉक्सी, वो अपने लोकल कैशे से, लोकल प्रॉक्सी से उस TCP पैकेट को रिमूव कर देती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और प्रॉक्सी नोड ने ले ली है। नाउ द फॉरवर्ड पैकेट कुड पॉसिबली बी इंटरसेप्टेड अगेन बाय अनदर प्रॉक्सी, यानी जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, इंटरमीडिएट बहुत सारे प्रॉक्सी से वो पैकेट गुजर सकता है। अब अगर आप इस स्कीम को देखें, इस कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म को देखें, सो हेयर वी डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर एंड टू एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट, जिस तरह TCP में होता है, मीनिंग दैट सोर्स विल नॉट क्लियर अ पैकेट। अच्छा, इंटरमीडिएट प्रॉक्सीज तो लेक रिसीव करने के बाद पैकेट को रिमूव कर देती है, लेकिन जो सोर्स नोड है, सेंडर ऑफ द पैकेट, वो पैकेट को बफर से तब तक क्लियर नहीं करती जब तक इसको
cumulative acknowledgement from the final destination नहीं मिल जाती. So there is like something end to end. So we are dealing with two types of acknowledgement in the split TCP approach, local and cumulative. Local between the proxies, intermediate nodes, while cumulative is between the source and destination, end to end acknowledgement. ओके आपने इसमें नोटिस किया होगा कि ओवरहेड जो है इंक्रीज होता है, यानी नाउ वी आर डीलिंग विद टू टाइप्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एंड टू एंड भी है और लोकल एक्नॉलेजमेंट्स भी है. लेकिन ये जो ओवरहेड है देयर इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि देयर इज़ एक्सेप्टेबल. अगर हम इसकी थ्रूपुट को या परफॉर्मेंस को देखें सो इट इज़ लाइक नॉट नेग्लिजिबल बट एक्सेप्टेबल, बिकॉज इसके जो एडवांटेजेस हैं वो टीसीपी वाले एडवांटेजेस हमें मिल रहे हैं. स्प्लिट टीसीपी अप्रोच को समझने के लिए लेट अस कंसिडर अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ अ सिनेरियो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have a source which has been represented with the letter S, and we have a destination being represented with the letter D, और in between आपके पास intermediate nodes हैं. अब हम split TCP approach को यूज़ कर रहे हैं. So according to this approach सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा, we need to select proxy nodes. So ये जो आपको P1 नज़र आ रहा है and P2 नज़र आ रहा है, they are actually your proxy nodes. And यहाँ पे we have different regions as well. So आप कह सकते हैं कि we have 3 different regions here. हमने नेटवर्क को regions में divide किया है. Okay, so in the following figure जो S है वो initiate करेगा TCP कनेक्शन को, सेशन को, और नोड डी जो है वो हमारे पास डेस्टिनेशन है P1 एंड P2. उसको हमने चूज़ किया है एज अ प्रॉक्सी नोड्स. द नंबर ऑफ प्रॉक्सी नोड्स रिमेंबर इन एनी TCP सेशन इज़ एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतने ही आपके पास जो प्रॉक्सी नोड्स की तादाद है वो ज़्यादा होगी. इफ़ द लेंथ इज़ शॉर्ट द नंबर ऑफ प्रॉक्सी नोड इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट एज वेल. सो इस सिनारियो में क्या होगा, जो आपके पास प्रॉक्सी नोड है P1, जैसे ही उसको TCP पैकेट रिसीव होगा फ्रॉम द सोर्स नोड S, ये क्या करेगा, उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट करेगा. और एक्नॉलेजमेंट किसके थ्रू करेगा, विद अ लोकल एक्नॉलेजमेंट जिसको हम लेक कहते हैं. लेक पैकेट के ज़रिए वो इसको एक्नॉलेज करेगा और साथ में ये इस पैकेट को बफर भी करेगा. अब इस बफर पैकेट को P1 क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा टू द नेक्स्ट प्रॉक्सी. इन दिस केस आवर नेक्स्ट प्रॉक्सी इज़ P2, राइट. सो जैसे ही P2 को ये TCP पैकेट रिसीव होगा, इट विल डू द सेम थिंग. लेक को जनरेट करेगा, उसको सेंड करेगा टूवर्ड P1, पैकेट को बफर में स्टोर करेगा एंड देन इसको आगे फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड द फाइनल डेस्टिनेशन एंड दैट इज़ D. अब यहाँ पे देखें, जैसे ही ये पैकेट फाइनल डेस्टिनेशन को रिसीव होगा, सो फाइनल डेस्टिनेशन क्या करेगा, वो एंड टू एंड कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड करेगा टूवर्ड द सेंडर. और जैसे ही वो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा, इट विल रिमूव द पैकेट फ्रॉम इट्स बफर. Okay, in summary, this scheme essentially split the transport layer functionalities into those of congestion control and end-to-end reliability. So आपने देखा congestion को हम कंट्रोल कर रहे हैं with the help of local, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं locally with the help of proxy nodes, जबकि source and destination end-to-end reliability को हम cumulative acknowledgement के ज़रिए जो है वो हैंडल कर रहे हैं. Okay. So this was about the first approach, which is the split approach. इसके अलावा हम TCP और मानेट की जो सेकंड सब कैटेगरी है, जिसको हम एंड टू एंड अप्रोच कहते हैं, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो एंड टू एंड अप्रोच है, इट एक्चुअली मेनली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ TCP मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ
packet losses due to root failure or due to network congestion in the mainnet. तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस पे हम बात करेंगे कि what are the protocols of this category and what are the main features of end-to-end approach. And finally जो हमारे पास second category है there is the other transport layer protocol, जिस तरह मैंने बताया था कि इसको आप नॉन TCP वेरिएंट्स भी कह सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी वाले जो प्रोटोकॉल्स थे दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन TCP, लेकिन जो अदर अब जो इस कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन TCP. और इस कैटेगरी के जो टू फेमस प्रोटोकॉल है दे आर ACTP एंड ATP. So in the next lecture we will be exploring some more protocols for the transport layer of mobile ad hoc network. So it was all about today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.